Hello, everyone, and welcome to Live Wabi Sabi podcast. This is a platform dedicated to amplifying voices, celebrating stories, and reminding us that our imperfections make us extraordinary. At Live Wabi Sabi, we shine light on inspiring women across globe through blogs, newsletters, podcasts, magazine features, interviews and meaningful conversations rooted in one powerful truth. You do not need to be perfect to be worthy, and the very things you once considered flaws may become your unique signature. Well, I'm your host, Shilpi Gupta Shah, digital storyteller, founder of Live Wabi Sabi, and a global advocate for women's empowerment and purpose driven entrepreneurship. Well, my mission is simple yet profound: to transform lived experiences, expertise, aspirations, and unconventional journeys into stories that inspire and create meaningful impact across globe. Today, we are joined by an extraordinary woman whose journey beautifully proves that age is never a barrier to growth, transformation, or achieving new dreams. Neera Paritosh ji is an educator with over 33 years of teaching experience and author, mentor, speaker, and founder of Parenting the Parent campaign. Through her books, Ripple of Words and Parenting the Parent campaign, she passionately advocates for responsible parenting, value based living, and holistic development of future generations. Her dedication to creating meaningful social change has earned her numerous recognitions, including being featured among 100 influential women, receiving national and international awards, and being honored across various media platforms. But today, we are exploring a different chapter of her journey, one that surprised many and inspired even more. At the age of 56, Neera stepped into the pageant stage. Just imagine, she stepped into the pageant stage, participated in VG Miss and Mrs. India Empress 2025, and emerged as second runner up in her category, proving that confidence, courage, and dreams have no expiry date. Neera, see, she is wearing a crown, and Neeraji, you are looking so beautiful in this red dress and crown. Welcome to the podcast. How are you feeling in this session today? Thank you so much, Shilpi. It's always an honor to interact with you and to come for any interview or any podcast. आपके साथ बात करके इतना अच्छा लगता है and thank you for the appreciation you gave me and we will talk about this only you told me. Thank you so much. Yes, you Thank you. deserve it. Since you entered VG Miss and Mrs. India Empress and earned, हाँ, title and crown as well. हाँ, So, हाँ, हाँ. sir, first and foremost, tell us what inspired you to take that leap, and what do you think this achievement, made this? What do you think made this achievement possible first and foremost? फिर पे मैं बार-बार बोलूँगी आपने एज इतनी बार बोल दिया ना, पहली बात तो आपने बोला अभी नहीं, नहीं उसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ एंड दैट इज़ लास्ट ईयर ऑन 14th August 2025 I got this crown. I'm so proud of myself. But at that time I was 55, 56 नहीं थी और दूस Information. और दूसरी बात हाँ, हाँ, हाँ। नहीं और दूसरी बात आपने अभी मुझे बोला दैट यू आर लुकिंग सो प्रिटी सो ब्यूटीफुल एंड नाउ यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग योर स्टेटमेंट आप बार बार मुझे एज बोल रहे हो नॉट जस्ट You can look like Zaika Arora in your 60s. थैंक यू शिल्पी नहीं ये तो मजाक के लिए मैं बोल रही थी रियली आई वांट टू टेल यू समथिंग व्हेन वी जॉइंड आवर स्कूल मतलब 25-30 से भी कम के होंगे एंड देन द वो सीनियर टू अस उसमें कोई 45 का था कोई 50 का था तो आई रियली एडमायर दैट सेंटेंस दैट रिमार्क of a senior who always used to say age is always 15 years ahead
मतलब जब हम 30 के थे तो हमें लगता था 45 वाले लोग बेचारे कितने बूढ़े हैं। व्हेन वी गॉट 45 इयर्स ओल्ड तो मुझे लगता था नहीं वी आर सो यंग। तो बेचारों को 60 में रिटायर करते हैं ना तो वो ठीक है, वो तो बेचारे बूढ़े हो जाते हैं। फील कि हाँ 60 आ भी जाएगा तो शायद हमें 75 इयर्स वाले बूढ़े लगेंगे। सो दैट एज इज ऑलवेज 15 इयर्स अहेड। हमेशा ये नहीं सोच सकते कि हम इस एज में बूढ़े लग रहे हैं इस में। मुझे तो लगता है कि मैं भी 25 इयर्स की हूँ। मुझे चीज़ें करते लगता मुझे तो है। 16 ईयर्स ही लगता है। एनीवेज़ हमें बताइए कि क्या इंस्पिरेशन थी आपकी पेजेंट में जाने के हाँ, लिए? उसके बाद बोलना चाहूँगी द रिस्पॉन्स ऑफ द फैमिली। क्योंकि आप जो बात बोल रहे हैं ना वो बिकॉज़ एवरीबॉडी सीज़ यू फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि वो लेंस तो वही है ना, जिसमें आपको एज दिखाई देगी, आपके फ्लॉज़ दिखाई देंगे, आपके पॉज़िटिव्स और वो भी फैमिली को दिख जाएँ बहुत बड़ी बात है। तो उस उसमें मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि व्हेन आई अनाउंस दैट आई वांट टू पार्टिसिपेट तो वो आप सोच के भी मत चलो बिकॉज़ आई वांट टू मोटिवेट, आई वांट टू एनकरेज द अदर वुमेन टू पार्टिसिपेट। मैं कभी नहीं ये बोलूँगी कि हाँ, आपको रोने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि रिमार्क ज़रूरी नहीं है और मोस्ट प्रोबेबली नहीं है कि पॉज़िटिव आ जाएगा। तो पॉज़िटिव बहुत रेयर चांस है कि आएगा। एंड देन द सेम पर्सन क्योंकि मोस्टली हम हस्बैंड के रिमार्क से थोड़े परेशान होते हैं। तो आप देखो तो सही ना, अ पर्सन हू इज़ द सेम पर्सन हू इज़ बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर व्हेन हिज डॉटर इज़ पार्टिसिपेटिंग फॉर द ब्यूटी पेजेंट और फॉर समथिंग एल्स, ही इज़ द सेम पर्सन बट ही इज़ गिविंग हिज सपोर्ट इन एवरी सेंस। अच्छा मैं फाइनेंशियली ये कर देता हूँ, अच्छा कहाँ छोड़ के आना है, अच्छा कौन-सा कोर्स करना है। एंड व्हेन द सेम पर्सन when you announce that you want to participate तो वाइफ के लिए वो सेम नहीं हो सकता। तो इसलिए रोना बंद करो, वो नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है तो कोई बात नहीं, तो वो वही रिस्पॉन्स ही आएगा। यू जस्ट फील कि आपको पार्टिसिपेट करना है और उसमें आपको क्या बेनिफिट होगा। एंड देन यू सेड थिंक एवरी वुमन, मुझे लगता है हमें ये शो ना वुमेन्स डे पे करना चाहिए था। तो क्योंकि मुझे लगता है हम सारी बुराइयां ही करते जा रहे हैं। वुमेन्स डे पे वापस प्रमोट कर देंगे तो वुमेन्स डे प्रमोट कर देंगे। हाँ, उसमें ये ना एक एज के बाद आपको लगने लग जाता है व्हेन यू आर मैरिड तो भी आपको ये कमेंट मिलने लग जाता है हाँ आप क्या है, ठीक है सब कुछ तो अचीव कर लिया है। तो वो जो खालीपन रह जाता है ना दैट यू ऑल्सो फील दैट योर रिस्पेक्ट इज लेस, पीपल आर टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों चाहे वो बाहर लोग हों। तो वो फीलिंग यू नो दैट फीलिंग रियली मोटिवेट्स यू टू डू समथिंग। क्योंकि यू ऑलवेज फील व्हेन यू अचीव समथिंग, समथिंग डिफरेंट, you're always praised, you're always appreciated। एंड वो जो लोगों की नज़रों में आपने रिस्पेक्ट देखी वो भी होती है और अपनी नज़रों में भी अपनी रिस्पेक्ट देखी आपने, वो डेफिनेटली इंक्रीज होती है व्हेन यू अचीव समथिंग। तो मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ अगर नीरा जी ये क्राउन पहन सकती है तो आप तो जरूर हर पहनना कोई चाहिए। मैं तो आई रियली वांट टू मोटिवेट द अदर पीपल इन दिस मैनर ओनली कि अगर मैं ये कर सकती हूँ एट द एज ऑफ 55 आई गॉट दिस क्राउन, वाज प्रेज्ड, आई took that initiative, that challenge of doing the ramp walk and doing everything what is done in a beauty pageant। आप सोच के एक बार मेरे साइड से भी तो देखिए ना, आई एम अ टीचर फॉर द पास्ट 33 ईयर्स। आप एक टीचर के हिसाब से देखिए दैट दोज टू फेजेस और दोज टू फील्ड्स आर टोटली ऑपोजिट और टोटली डिफरेंट। अगर इट्स लाइक यू नो यू आर ऑन ए माउंटेन, यू आर क्लाइंबिंग दैट माउंटेन एट इट्स पीक, but now you have decided to reach the other mountain and climb it also। तो मेरे लिए तो वो टोटली डिफरेंट था ना। तो वो इतनी करेज लाना और इतना कुछ लाना वो सच में मुश्किल था। बट आई नो दैट आफ्टर अचीविंग दैट तो वो जो मिलेगा ना, वो जो फ्रूट है, दैट इज द रियल मोटिवेशन। So, Neeraj ji, in our earlier podcast, we have explored the powerful concept of ask, believe, and receive. हाँ We हाँ हाँ discussed how the clarity of intention or unwavering belief and the aligned actions also हाँ can हाँ हाँ help, like turn our dreams into reality. हाँ So, हाँ when you looking back at your pageant journey, do you हाँ। see this process, playing a role in your success? So, can you share some specific examples where your mindset or your belief system, influenced the outcome? अच्छा शिल्पी पहले आप मुझे बताओ कि मैं सच बोलूं या आइडियलिस्टिक बातें बताऊं। नहीं 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 आप एकदम सच बोलिए क्योंकि
ऑथेंटिसिटी और हाँ, हाँ। वल्नरेबिलिटी जो चीज़ है ना, उससे सब कोई रिलेट कर सकता है। हाँ, हाँ। मैं रियली बोलती हूँ, मैंने जितने भी उसमें यूट्यूब में वीडियोज़, क्योंकि इससे पहले तो हम देखते ही हैं ना बिफोर पार्टिसिपेटिंग। मेरा व्यू पॉइंट है दैट एवरीबॉडी कैन पार्टिसिपेट ओनली इफ दैट पर्सन नोज़ कि हाँ, कॉमन ह्यूमन बीइंग है, तो ये वाली बातें तो होंगी ही, ये सब तो होगा ही। जैसे हमने एक प्रोसेस करा आस्क, बिलीव, रिसीव, फिर हमने कहा उसमें एक एक्ट भी होना चाहिए, अभी तक तो हम यही डिस्कस कर रहे थे। तो आई जस्ट वांट टू रिलेट विद इट। हाँ, दूसरों को बोलने के लिए तो हम ज़रूर प्रोसेस बताते हैं, और वो होना भी चाहिए। आई कुड अचीव, आई गॉट द सेकंड रनर्स अप पोजीशन। मुझे लगता है कि अगर मैं वो प्रोसेस फॉलो करती ना, खुद फॉलो करती, शायद वो उससे ऊपर वाली पोजीशन भी आ जाती, बिकॉज आई डेंट फॉलो दैट। जैसे उसमें एक वर्ड था बिलीव, तो पहले आप बिलीव तो करो कि आप उस पोजीशन पे पहुंच जाओगे। हाँ, तो उसमें बिलीव तो मैं बोलूँगी आई अग्रीड ऑन दिस फैक्ट दैट आई कैन नॉट अटेन दैट। तो बिलीव में तो पहले ही ज़ीरो हो गया। अच्छा, आस्क में एक वर्ड हमने करा था क्लैरिटी। तो क्लैरिटी तो तब होती है ना जब आप उस बारे में सोचते हैं। तो एक और चीज़ जो इसमें देना चाह रही हूँ वो कि हम आस्क, बिलीव, रिसीव में कुछ ना कुछ पॉइंट्स देते रहते हैं ना। तो एक पॉइंट उसमें ये भी है कि आप जो चीज़ सोचोगे वो हो जाएगी। सो दैट इज़ व्हाई वी ऑलवेज से दैट मोर एक्सपोज़र शुड बी गिवन टू द चाइल्ड। क्योंकि उसको पता होगा ना, अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे व्हेन पीपल से अ वर्ड बीच, कि बीच में बहुत मज़े आते हैं, ये होता है, लेकिन आप उन लोगों के बारे में सोच के देखो ना जिन्होंने वो वर्ड कभी सुना ही नहीं। ना उन्होंने ये सुना है कि अच्छा बीच ऐसे होता है, वहाँ ऐसे वेव्स आती हैं, सनसेट बड़ा सुंदर लगता है या सनराइज़ बड़ा सुंदर लगता है, जिसको पता ही नहीं, वो कैसे, अब हम उसको बोलते हैं अच्छा विजुअलाइज़ दिस। आप विजुअलाइज़ कैसे करोगे जब आपको पता ही नहीं है? तो दैट इज़ व्हाई वी से दैट एक्सपोज़र इज़ इम्पोर्टेंट। तो आस्क में क्लैरिटी तब आएगी जब आपको पता होगा कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। जब आपको कभी वो एक्सपोज़र दिया ही नहीं गया, लाइक इन केस ऑफ फीमेल्स आई कैन रियली से दैट मोस्ट ऑफ द फीमेल्स डोंट नो कि वो कर क्या सकती हैं। उनको ये भी क्लियर नहीं है। तो आस्क में क्लैरिटी कैसे आएगी? जैसे इस फ़ील्ड में तो मैंने जाने का कभी सोचा ही नहीं था। तो आस्क और बिलीव में तो मैं फ़ेल हो गई। तो देन वो रिसीव अभी बताती। एक्शन किया। तो एक्ट के केस में मैं बोल सकती हूँ कि मैंने 100% जो भी करा ना, वो एक्ट करा। एक्ट के केस में जैसे मैं बोल सकती हूँ, व्हेन आई रेड दिस एड और व्हेन आई सॉ दिस एड ऑन इंस्टाग्राम, तो मुझे लगा अच्छा हाँ, उनके लिए बिकॉज़ आई टॉक टू दिस पर्सन, जो वहाँ मुझे मिली थी। एक बहुत बड़ी बहुत अच्छी सी टैगलाइन है कि आपका कोई भी एज लिमिट, कोई भी एज हो, कोई भी वेट हो, कोई भी कलर हो। हाँ, हाँ। ये जो सेंटेंस है, ये मेरे ख्याल में हर कोई रिलेट करता था कि अच्छा वेट ज्यादा है तो भी जा सकते हैं, कम है तो भी जा सकते हैं, हाँ, हाँ। काले हैं तो भी जा सकते हैं, गोरे हैं तो भी सो जा दिस सकते हैं, रियली मोटे हेल्प। हैं तो भी जा हाँ, सकते हाँ, हैं, हाँ। 25 के हैं तो भी जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेस्ट पार्ट हाँ, था हाँ। उस हाँ, ad ये वाली मैं बात ज़रूर करना चाहूँगी कि आपको ऐसी अपॉर्च्युनिटी कब मिलेगी व्हेन दे आर सेइंग ऐज नो बार, हाइट नो बार, वेट नो बार। तो आपको सिर्फ़ वो वही तो हिम्मत लानी है, और जो करेज लानी है ना, कि आप वहाँ जाके बोलना है या वहाँ पहुँचना ही तो सबसे फर्स्ट स्टेप लेना ही डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर आप फर्स्ट स्टेप तो लीजिए, तो आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। आवर स्कूल आल्सो सम पीपल जॉइन्ड एट दैट टाइम, जो आप बहुत एडमायर करते हो, क्या इस बार ना न्यू टीचर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई हैं। तो व्हेन आई स्पोक टू देम कि आप यहाँ पार्टिसिपेट करो, प्लीज़ अप्लाई, वो रिस्पॉन्स मैं वाज़ वेरी नेगेटिव। तो वो एवरीबॉडी सेड नहीं, नहीं वो ऐसे तो मैं पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकती, मैं तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। सो व्हेन आई हर्ड दैट रिस्पॉन्स, पता नहीं मैंने गुस्से में करा या क्या करा, तो बट आई अप्लाइड फॉर दैट, क्योंकि वो एप्लीकेशन थोड़ी सी थी ना। आई अप्लाइड, और मैं किसी भी, उसके बाद ऑडिशन भी तो था कि ऑडिशन हियर ऑन दिस प्लेस, ऑन दिस, आई डिडंट गो। मुझे ऐसे लगा, मुझे डर लगने लग गया, बिकॉज थिंग वाज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी। कि आप जब भी वो नेट पे आप सारा डिटेल तो लेते ही हो कि अच्छा ये है क्या, विजनारा ग्लोबल वाज द स्टेज विच वाज गिवन टू मी। तो वो जब भी आपने डिटेल देखा, अच्छा दिस पर्सन इज ऑल्सो देयर एंड दे आस्क क्वेश्चंस, ये भी इनसे जुड़े हुए हैं, ये भी जुड़े हुए हैं, तो वो हमेशा वो दैट थिंग इज़ वेरी ओवरवेलमिंग। तो मैं एंड तक गई ही नहीं। तो वो फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा था, तो बिकॉज दे गिव ट्रेनिंग ऑल्सो। तो फर्स्ट तक तो मैंने फ़ोन ही नहीं उठाया। तो उसके बाद मुझे लगा हाँ, अब तो स्टार्ट हो ही गया होगा, चलो कोई बात नहीं। एंड देन इतने दिन और भी हो गए, एंड देन ऑन 10th
व्हेन द फ़ोन केम, तो मुझे लगा अच्छा लास्ट टाइम अब तो वो यही बोल रहे होंगे ना कि हाँ यू कुडंट पार्टिसिपेट, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम कर लेना। तो पता नहीं मैंने फ़ोन क्यों उठा लिया, एंड दे सेड यू हैव योर ऑनलाइन इंटरव्यू टुमारो एट 6:30। तो मतलब पता नहीं शर्म के उसमें मैं कुछ बोल नहीं पाई, एंड देन आई टुक दैट इंटरव्यू एंड वैसे ऐसा क्या होता है ना कि सबको मतलब यूनिवर्स चीजें अलाइन करती हैं। हाँ 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 कुछ अलाइन चीजें अलाइन करी गई, आप प्रेजेंट में आई, हम लोग मिले और आज हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच शिल्पी, एंड आई रियली फील कि थैंक गॉड मैंने वो फ़ोन उठाया, एंड इन दैट इंटरव्यू द डायरेक्टर मिसेस विनीता श्रीवास्तव, शी टुक द इंटरव्यू, एंड वो जैसे मैंने बहाने मारने थे मैंने मारना शुरू कर दिया, ओ आई डिडंट गेट टाइम, अच्छा अभी मेरे पास ये नहीं, अच्छा नेक्स्ट ईयर आई विल पार्टिसिपेट। अच्छा उन्होंने कहा अच्छा आप कितने साल के हैं, सो जो भी मैंने 55 या बोला, अच्छा उन्होंने कहा अच्छा फिर कब करना है पार्टिसिपेट। सो आई रियली फील वो जो परफेक्ट टाइम है ना जिसके हम वेट करते रहते हैं, शायद वो नहीं आता, एंड वी डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग, वी रिलेट दिस थिंग कि हमारा बर्थडे हम बड़े खुश होकर मनाते हैं, बट 1 more year हैज़ गॉन। तो आपने जो करना है ना तो वो कर लीजिए, वो परफेक्ट टाइम नहीं आएगा। ठीक है नीरज जी, हमें ये तो समझ में आ गया कि मतलब हमें थोड़ा सा माइंडसेट पे काम करना हाँ होता हाँ है हाँ ना? हाँ हाँ तो हाँ अभी तक तो हमने सारी माइंडसेट की बात करी, लेकिन हाँ फॉर समवन हु इज वाचिंग एंड थिंकिंग कि आई विश आई हैड द करेज, नाउ आई हैव द करेज टू डू समथिंग एट हाँ दिस हाँ हाँ स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक हाँ है? हाँ हाँ तो व्हाट प्रैक्टिकल प्रिपरेशन I mean, did you undertake before the pageant? Could you share the habits or routine or mindset we have already talked? तो क्या हैबिट और रूटीन कुछ आपने ऐसा चेंज करा जिससे कि आपको लगे कि नाउ आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड टू गो टू द पेजेंट? इसमें शिल्पी एक चीज़ ने मेरी और हेल्प करी जो मैं रियली बोलना चाहती हूँ, बिकॉज आफ्टर कोरोना आई गॉट टाइम टू सिट विद माई सेल्फ। क्योंकि आप जो कुछ करना चाहते हो, आपको उस वक्त लगता है ना कि आप इस भागदौड़ के लिए नहीं आए थे, यू ऑल्सो हैव सम पर्पस इन लाइफ। आपको ज़मीन पर भेजा गया था तो किसी काम के लिए भेजा गया था, तो ऐसी वाली बातें और बहुत सारी इस टाइप वाली बातें आने लग गई। देन आई डिड अराउंड आई थिंक 46-47 कोर्सेज़ तो अभी तक हो ही चुके होंगे, तो वो कोर्सेज़ में बहुत हेल्प हुई। आई बिकेम अ टीचर आफ्टर डूइंग BCom MCom B.Ed M.Ed। तो मुझे लगा बस हो गई पढ़ाई, बस और नहीं करनी, 19 ईयर्स आपने पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया है, तो अब आपको ज़रूरत ही नहीं पूरी लाइफ। ऐसा नहीं होता, यू आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। क्योंकि आप हर बार कुछ सीखते हैं, हर बार कुछ सीखते हैं, लेकिन उसके लिए माइंड तो ओपन रखना पड़ेगा ना। सो आई रियली फील कि वो जो माइंड ओपन हुआ ना उसके बाद, तो दैट हेल्प मी। अच्छा जो एक पेजेंट के लिए आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, नाउ ऑल द पीपल हु आर रेडी फॉर दिस, उसके लिए बोल रही हूँ, आप जिस भी कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, अब ब्यूटी पेजेंट के लिए नहीं भी जा रहे हैं, लेकिन आप उससे पहले उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो लीजिए। जैसे इस केस में अगर ब्यूटी पेजेंट है तो उसके केस में आप पुरानी जो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, वो ईयर मैटर नहीं करता, आप जो भी देख रहे हैं, और उसमें मिस इंडिया कॉन्टेस्ट नहीं, आप कोई और कॉन्टेस्ट देखना चाहते हैं, एक बार देखिए तो सही, तो यू बिकम फेमिलियर विद दी प्रैक्टिसेस देयर। और एक तो वो चीज़ होती है, दूसरी चीज़ होती है जैसे व्हेन वी कम्युनिकेट, तो आपको जैसे था ना यू लैक वर्ड्स, तो बार बार आप सोचते हैं अच्छा हाँ यू आर हाफ एक्सप्रेस्ड, तो आपको लगता है ओहो उस वक्त ना मुझे ये वर्ड याद नहीं आया। तो व्हेन यू सी दोज क्वेश्चन आंसर राउंड्स एंड द अदर व्हेन द पीपल आर टॉकिंग, तो उसके लिए पहला स्टेप है यू विल हैव टू बिकम अ गुड लिसनर। तो आप सुन रहे हैं ना, रोज़ सुन रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को सुन रहे हैं, तो उसमें यू बिकम फेमिलियर, यू बिकम बेटर डेफिनेटली विद टाइम विद एज। हाँ, लेकिन आप सोचेंगे कि बिल्कुल बस मैं आंसर दूंगी तो परफेक्टली ये जवाब निकलेगा और फिर लोग इम्प्रेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो उसमें बस थोड़ी सी बातें याद रखनी, उसके लिए मैं बोलूँगी कि यू जस्ट टॉक सॉफ्टली। आप जो भी बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि आप यहाँ बस सॉफ्टली बोल रहे हैं। और एक डिफरेंस ज़रूर बोलना चाहूँगी हर एक को, देयर इज़ अ डिफरेंस इन टॉकिंग एंड स्पीकिंग। टॉकिंग मतलब आप जो मर्ज़ी बोलते ही जा रहे हैं, मतलब आपने एक बार भी नहीं सोचा। बट व्हेन वी यूज़ द वर्ड स्पीकिंग, तो स्पीकिंग में एक और चीज़ होती है थिंकिंग, एंड देन
कन्वेइंग द मैसेज। तो जो टॉकिंग और स्पीकिंग में डिफरेंस है ना, वो इसके बाद आता है, बिकॉज यू नो एवरीबडी इज बीइंग आस्क्ड अ क्वेश्चन, नाउ दे आर नॉट जस्ट स्टार्टिंग, the other process is also going on their in their mind कि अच्छा ये बोला है तो अच्छा मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या रिलेट करके बोलना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि दे आर नॉट टॉकिंग, दे आर स्पीकिंग, है ना। तो वो वाला प्रोसेस भी यहाँ से समझ में आता है। Okay. So Neeraj ji, every success story comes with हाँ unseen struggles. ये तो हमें समझ में आ रहा है. While people often notice the crown or celebration, they don't always see the challenges or fears or sacrifices behind the achievement. So what was the most challenging part of VG Mrs. India journey? आप कुछ उसके बारे में शेयर करना चाहिए? सबसे चैलेंजिंग पार्ट आपको एज अ टीचर, ऑथर एंड मेंटोर। मैं सच बताऊँ शिल्पी, आई थिंक एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट चैलेंज। जो मेरे हिसाब से चैलेंज था ना, जो आपकी वीकनेस होती है ना, शायद वो आपका चैलेंज होता है। तो बाकी सब मैं कर रही थी, बिकॉज आई रियली फील स्पीकिंग इज़ माई फोर्टे, थिंकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग एंड स्पीकिंग, दैट इज़ माई फील्ड। तो अगर आप इस फील्ड की बात करें ना, तो आपने बाकी फील्ड्स के बारे में तो सोचा ही नहीं होगा। तो जब मैं ये भी कर रही थी स्क्रिप्ट राइटिंग और ये सब, तो मैंने टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट के लिए आई हैव मेड अ टीम, तो टेक्नोलॉजी सारी वही हैंडल करते हैं। नाउ फॉर विच एवर इवेंट यू आर गोइंग, तो उनकी कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगी, कि अच्छा आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो बिसाइड्स दैट रिकॉर्डिंग्स दे वर डूइंग फॉर 40 days, दे वर ट्रेनिंग अस कि अच्छा आपको मेकअप ऐसा करना है, अच्छा आपको इस दिन ये ड्रेस पहनना है, आपको इस दिन ये करना है। तो वो सारी प्लानिंग तो मैंने बहुत अच्छी कर ली, बिकॉज आई ऑलवेज सजेस्ट दैट यू मेक अ रजिस्टर, क्योंकि पेजेस फिर खो जाते हैं, है ना। क्यों वो मैंने कहाँ लिखा था, हाँ हाँ वो दिस, हाँ हाँ हाँ। तो मैंने वो रजिस्टर पे लिखा, अच्छा इस दिन ये है टैलेंट राउंड है, अच्छा इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, अच्छा इस दिन ये रैम्प वॉकिंग है, अच्छा इसके लिए ये हील्स चाहिए, ये हील्स चाहिए। तो माई लिस्ट वॉज ऑलवेज रेडी कि अच्छा इस दिन मैं ये गाउन ये ड्रेस लेके आनी है, और साथ में ये हील्स है। और मैं हमेशा बोलूँगी कि एज अ पेरेंट ऑल्सो बोलूँगी कि जो भी चाहे 20s वाला पार्टिसिपेट कर रहा है, 30s वाला, 40s वाला, कि एक ड्रेस एक्स्ट्रा ज़रूर रख लेना उसके लिए, खासकर फाइनल डे के लिए। क्योंकि फाइनल डे में हमें मतलब उन्होंने बोला कि देवर गिविंग दी बेस्ट गाउन्स फॉर आस। लेकिन आप सोच के देखो ना, फैशन इवेंट में कोई आ रहा है तो उसके हिसाब से तो गाउन्स बने होंगे ना, तो स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़ और लार्ज साइज़ भी शायद नहीं होगा। तो उस दिन जब गाउन्स आए, तो वो जो गाउन्स आए तो मुझे तो लग रहा था मेरे बाजू में फिट नहीं होगा तो थैंक गॉड आई हैड वन एक्स्ट्रा गाउन जो मैं वहाँ लेके गई थी। तो एज अ पेरेंट या पर्सन टू हेल्प समबडी हाँ, ये मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप एक्स्ट्रा ज़रूर लेके जाओ। अच्छा, और दूसरी बात, सो व्हेन यू आर सीइंग, यू आर ऑब्जर्विंग द अदर पर्सन्स ऑल्सो, और आप उनको देख रहे हैं कि वो इतना अच्छा लग रहा है, उसने ये गाउन पहना है, उसने ये पहना है, एंड माइन इज़ अ सिंपल वन। कोई बात नहीं, आपने जो पहना ना ठीक है, वॉट एवर यू डिमॉन्स्ट्रेट देयर, वॉट एवर वे यू वॉक, वॉट एवर वे यू टॉक एंड यू आंसर, आप उस पर कॉन्फिडेंस रखो। आपने जो पहन लिया ठीक है, आपका जैसा मेकअप है, जो भी आपको जो भी थोड़ा बहुत ठीक करना है आप कर लीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं, बस। इससे ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं, मैं अच्छी नहीं लग रही, बिकॉज वी हैव दैट मेंटालिटी ना कि हमें वैलिडेशन चाहिए कि हम, अच्छा मैं ठीक लग रही हूँ, अच्छा मैं ठीक लग रही हूँ, कि हम तो यही पूछते रहते हैं। तो उससे थोड़ा बाहर आना है, तो ये वाली चीज़ भी है। ठीक है नीरज जी, अभी हमें ये तो माइंडसेट हमें अपना ठीक करना है, वो समझ में आ गया। हाँ। फिजिकली हमें क्या चीजें प्रिपेयर करनी है, वो भी हमें समझ में आ गया। अब मुझे आपसे ये पूछना है, द मोमेंट ऑफ विक्ट्री, I mean, हाँ that हाँ is often, more than a crown or a title. It हाँ can हाँ represent years of perseverance, personal growth, or courage, to challenge limitations. तो हमें आप ये बताइए, when your name was announced as second runner-up, what emotions went through your mind? I mean, beyond the crown or recognition, what did that achievement mean to you personally? अगर आपको याद हो, हमने वो प्रोसेस करा था ना, आस्क, बिलीव, रिसीव, एक्ट, एनीथिंग, तो उसमें रिसीव रह गया था। तो मैं रिसीव में सच में बताना चाहती हूँ, लोग कहते हैं अपने अंदर का बच्चा आप हमेशा ज़िंदा रखिए, तो इसमें मेरा रोने वाला बच्चा ही ज़िंदा है तो वो कौन सा बच्चा है आपके अंदर, वो भी देखना होता है। सो व्हेन वी वर बैक स्टेज, एवरी नेम वॉज बींग अनाउंस्ड फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। तो आपके मेरे कान तो वहीं लगे हुए थे, या एवरीबडी वॉज ट्राइंग टू हेयर दैट ओनली।
तो उसमें यही हो रहा था, ये प्राइज़ भी अनाउंस हो गया, इसमें मेरा नाम नहीं आया, इसमें भी मेरा नाम नहीं आया। तो वो जो रोने वाली वो होती है ना कि ये अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, ओह आई हैव नॉट गॉट एनी प्राइज़। और उसके बाद मुझे लगा बहुत देर हो गई, एंड दे हैड अनाउंस्ड मैक्सिमम कैटेगरीज़। तो वो नेगेटिव ही आता जाता ना, तो मेरे माइंड में ये आता रहा कि वो हाउ विल आई गो बैक, मैं घर कैसे जाऊँगी, मैं कैसे शक्ल दिखाऊँगी क्योंकि अब घर से तो लड़ के आए हैं तो वो वाली में घर में चाहे किसी ने कुछ भी नहीं कहना था। सो व्हेन वी पार्टिसिपेट वी लर्न अ लॉट, वी ऑलवेज एडमायर, क्योंकि अभी भी बोलूँगी कि आई ऑलवेज एडमायर द कॉन्फिडेंस आई हैव गॉट एंड द चेंज इन माई बॉडी लैंग्वेज, यू ऑलवेज एडमायर दैट। एक वो चीज़ होती है, और एक और चीज़ बोलूँगी, तो जो प्रैक्टिसेस हमने उस टाइम पे करी ना, दैट प्रैक्टिसेस आर स्टिल गोइंग ऑन। जैसे मैं उसके यू हैव टू स्टील टाइम ना, आपकी तो पूरी रूटीन ऐसी है, आपको जॉब के लिए भी जाना है, आपको बाकी चीज़ें भी करनी है। तो जो मैं पहले 4 बजे या ऐसे उठती थी, आई स्टार्टेड गेटिंग अप एट 3 AM. When they said we are starting with question answer round, and we have selected only 29 candidates for that, and when my name was announced for that, तो एक satisfaction, thank God अभी scope है and you know when everybody is going for that question, तो आपका mind भी साथ में चल रहा है कि अच्छा उनसे अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा होता तो what would I have answered, तो वो साथ में दिमाग चल रहा है। सो व्हेन योर टर्न कम्स, तो वो आप जो भी आंसर देते हैं, बट दैट इज़ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द प्रैक्टिस यू हैव डन। तो बार बार मैं बोलती हूँ आपको कर्म नहीं छोड़ना है अपना। व्हेन माय नेम वाज अनाउंस्ड, तो वो कुछ याद नहीं रहा, अच्छा यहाँ दर्द थी वहाँ दर्द थी, तो वो स्टेप्स थी और उसके बाद स्टेज पे जाना था। तो वो स्टेप्स मैंने कैसे चढ़ी है मुझे पता कितनी भाग के वो स्टेप्स चढ़ी हैं। तो एंड वो जो सिर्फ 2 मिनट का ही होता, दैट यू कम इन द स्पॉटलाइट एंड देन यू रिसीव योर अवार्ड, और वो पिक्चर होती है और वो सब कुछ होता है, एंड दोज 2 minutes आर सो डियर टू एवरीबडी, and I really want everybody to at least taste that thing, क्योंकि वो आपको 2 मिनट आपको कभी नहीं भूलेंगे। when you're crowned and when you're given that prize and you are appreciated, और माइक पे आपके लिए बोला जा रहा है, तो प्लीज़ पार्टिसिपेट इन दैट। और जैसे एक साइड से स्टेज के आते हैं एंड यू गेट योर अवार्ड, और वो आप हंसते हुए और खुश होके और जैसे भी आते हैं, और दूसरी साइड पे अब जब आप नीचे उतरे ज़ोर से रोना आ रहा है बिकॉज यू नो इट वॉज अ मतलब टॉर्चर वर्ड नहीं बोलूँगी, इट वॉज अ यू नो एफर्ट ऑफ सो मेनी मंथ्स, सो मेनी ईयर्स, जो आपको शायद इतने सालों से वो तसल्ली नहीं मिली, वो अवार्ड जो आप डिज़र्विंग थे उसके, लेकिन वो नहीं मिला। सो व्हेन यू गेट दैट, तो वो इमोशनल होना बनता है बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और क्या नाम है, जो हमारे इमोशंस होते हैं उस समय वो इमोशंस कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है, पर मुझे लगता है कि आपने उन सब पे विजय पा ली है। यू आर ऑलरेडी विक्टोरियस, क्योंकि सक्सेस, और मैं ये भी कहना चाहूंगी, सक्सेस ऑफन ओपन्स न्यू डोर्स और क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज। नीरज, हाँ है ना? हाँ, तो इसमें ना, हाँ change how see ourselves। तो मुझे अब आप ये बताइए, हाउ हैज योर लाइफ इवॉल्व्ड आफ्टर बीइंग दिस पेजेंट टाइटल होल्डर? हाँ, ये वाली बात मैं इसमें भी बोलना चाहती थी, शिल्पी, जो आपके व्यूअर्स के लिए, हमारे फॉलोअर्स के लिए सच में वो बहुत काम करेगी। व्हेन यू विन इन वन थिंग, इन वन कंपटीशन, आप जहाँ मर्जी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप एक जगह जीतते हैं ना, तो फिर आप हर जगह जीतने लग जाते हैं। तो वो जो कॉन्फिडेंस आता है ना, जो एक जगह आप पार्टिसिपेट तो करिए, लेकिन उसके बाद जो क्रिएट होगा ना, कि आप हर जगह जहाँ भी और पार्टिसिपेट करें, बिकॉज योर थिंकिंग हैज़ चेंज, योर बॉडी लैंग्वेज हैज़ चेंज, एंड योर कॉन्फिडेंस हैज़ चेंज्ड, कि अच्छा हाँ मैं ये भी कर सकती हूँ, जब मैं इतना डिफ़िकल्ट कर सकती हूँ तो मैं ये भी कर सकती हूँ, है ना। कुछ बताना चाह रही थी आप इसी के बारे में? हाँ, मैं एक और चीज़ बोल रही थी कि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि लोग बोलते हैं कि नहीं हम तो बस कर्म करते हैं। पीपल से, जैसे इसके अवार्ड के बाद भी पीपल सेड, ओह यू आर सो लकी दैट यू हैव गॉट दिस क्राउन। तो मैं उसको और रिलेट करना चाहती हूँ। आई वांट टू एम्फसाइज वन थिंग,
कि आपके कर्म आपका भाग्य बनाते हैं। तो अगर ये बात समझ में आ जाए ना कि आपने जो भी सोचा है आप उसके लिए लगातार एफ़र्ट्स करें तो फ्यूचर के लिए तो एफ़र्ट्स करें और एंड में आप वो अचीव कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इन माय केस व्हेन आई वेंट फॉर दिस ब्यूटी पेजेंट, तो आप जो भी एफ़र्ट्स कर रहे थे अब वो क्राउन मिला तो आई एम वेरी लकी इन दैट केस। लेकिन नहीं भी मिलता तो भी एक एक्सपीरियंस होता। तो अगर आपको वो क्राउन मिल गया तो आपने अपना भाग्य खुद बनाया ना, सो यू क्रिएट योर फ्यूचर। तो वो क्रिएट करना, आपने क्या क्रिएट करना है उसकी डायरेक्शन में तो कर्म करने पड़ेंगे ना। तो आप वो सोच लीजिए वॉट एवर इज़ अलाइंड विद यू। जैसे मुझे लगता है मेरे साथ अलाइन हो रहा है कि स्क्रिप्ट बनाना, रिकॉर्डिंग एंड मोटिवेटिंग। तो मैं जो भी बोल रही हूँ तो आई रियली फील दैट सम और द अदर पीपल आर गेटिंग मोटिवेटेड, चाहे वो स्कूल में स्टूडेंट्स बोलें, चाहे पेरेंट्स बोलें, चाहे आपके फॉलोअर्स बोलें। तो 100% वो सबसे 100% होता है। नीता जी, आपकी आपकी स्टोरी का सबसे इंस्पायरिंग एस्पेक्ट ही यही है कि इट चैलेंजेस द बिलीफ दैट ड्रीम्स हैव एन एक्सपायरी डेट। But I mean, हाँ your हाँ journey sends a powerful message that हाँ हाँ reinvention हाँ is possible at any stage of life. तो अब मुझे ये बताइए, what message will you like to share with women who believe it's too late to start हाँ something हाँ new? अगर किसी को लग रहा है अभी बहुत देर हो गई है तो उनको कोई एक मैसेज दे दीजिए कि भैया देर नहीं हुई है, हाँ, जाओ मैं participate मैं सच में ये मैसेज देना चाहती हूँ क्योंकि आफ्टर वेडिंग ओनली पीपल वी ऑलवेज स्टार्ट लिसनिंग। हाँ, अब तो शादी हो गई, अब क्या है, अब और हम खुद भी बोलना शुरू कर देते हैं। लोगों ने जो कहा सो कहा, आपने अपने से क्या कहा। सिस्टर शिवानी का ये वाला सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो बोलती थी कि लोगों ने पीपल विल गिव यू रिमार्क्स, पीपल विल से समथिंग। आप अचीव करते हैं तो भी वो कुछ कह रहे हैं, जब आप नहीं अचीव करते हैं तो भी वो कुछ कह रहे हैं। तो वो जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं, आपने अपने आप से क्या कहा। क्योंकि इसमें मैं एक चीज़ जो बोलना चाहती थी कि वेर एवर यू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट प्लीज़ रेफ़र टू द मिरर वर्क। क्योंकि आपने शीशे के सामने, जब भी हमने ये बात की व्हेन आई डिड दिस कोर्स, तो आप शीशे के सामने खड़े होकर अगर आप हम बोलते हैं आप अपनी आंखों में आंखें डाल के देखिए। अगर आप अपने आप से आंखें नहीं मिला पा रहे तो लोगों ने जो कहा सो कहा, लेकिन आपने अपने आप को इतना डिग्रेड किया है ना। एंड इन दोज ईयर्स, वो 20 ईयर्स 30 ईयर्स, आप जितने भी साल के, आप जब 4-5 साल के थे या छोटे थे तब तो आप ऐसे नहीं थे ना। तो मिरर वर्क वो करना ज़रूरी होता है। मिरर वर्क क्या होता है कि दैट यू आर अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ एवरी डे। तो आप अपने लिए तो वर्ड बोला ही नहीं जाता, नीरा यू लुकिंग ग्रेट, नीरा यूर दिस। हम तो हमेशा बुरा ही करते रहे, अरे मेरा नाक अच्छा नहीं है, यहाँ कितनी गंदी लग रही हूँ मैं, कितनी गंदी, क्योंकि आपने तो पूरी उम्र यही बोला है। तो मिरर में आपने हमेशा अपनी तारीफ़ करनी है। तो जिस दिन आप बोलते हैं ना ओह नीरा आई लव यू, आप ऐसे मिरर के सामने से जा सकते हैं। तो द स्टेज फ्रॉम वेयर you were not even able to keep an eye contact with yourself, to a stage where you are giving a flying kiss to yourself और आप अपनी तारीफ करें। practice बहुत जरूरी है। हाँ तो I am हाँ beautiful, I am smart, I am sexy, हाँ, I ये am बोलना है। intelligent। और ये आप शाहरुख खान का इंटरव्यू देख लीजिए या कोई भी देख लीजिए, तो वो लोग रोज़ सुबह ये बोलते हैं। तो जो हम अब वर्ड सुनते हैं ना, पहले तो हमने कभी वर्ड ही नहीं सुना था, अफर्मेशंस। तो अफर्मेशंस यही तो हैं कि आप पॉजिटिव 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 अपने आप को बोलते जाते हैं। दैट रियली हेल्प्स। तो मिरर वर्क ज़रूर करें और यही नहीं सोचना कि अब मेरी शादी हो गई है अब मैं कुछ नहीं कर सकती, या मेरे बच्चे हो गए अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तो आप जहाँ आप खुद ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज देयर इज़ नो वॉल। तो वो इनविजिबल वॉल भी आपने ही क्रिएट किया है, वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं आती है ना। हाँ, बाकी वो ठीक है कि एनवायरनमेंट में हमारी सोसाइटी हमको विश्वास दिला देती, नहीं नहीं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट यू टेक केयर ऑफ़ द फैमिली, वो सब आपने करना है। ठीक है, आउट ऑफ लव वीमेन डू दिस, लेकिन अपने आप को उसके लिए मार देना है ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप अपना शौक़ ज़िंदा रखिए और पार्टिसिपेट ज़रूर करिए, क्योंकि हर पार्टिसिपेशन के बाद यू लर्न अ लॉट, यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। प्लीज़ पार्टिसिपेट। शिल्पी, मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, आई एम सो लकी दैट आई पार्टिसिपेटेड इन वीजी मिस एंड मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट। मुझे लगता है कि बाकी इवेंट्स भी अच्छे होंगे, बाकी जो भी कॉन्टेस्ट हैं वो भी बहुत अच्छे होंगे, बट आई कैन रियली रिलेट विद दिस,
कि वो एक एक चीज़ जो उन्होंने रिकॉर्डिंग्स में हमें सिखाया, मीन्स द ट्रेनिंग वाज परफेक्ट। बाकी आप जो मर्ज़ी बोल दीजिए कि हाँ उन्होंने तो इवेंट ऑर्गेनाइज करना था तो हर चीज़ तो परफेक्ट होगी, बट द मोटिवेशन विच दे गेव एट एवरी स्टेप, यहाँ तक कि अभी हमने जब स्टेज पे फाइनल डे भी आपने थोड़े से स्टेप्स गड़बड़ कर दिए। सो मिसेस विनीता श्रीवास्तव शी केम एंड सेड कि हाँ कोई बात नहीं, प्लीज़ एडमायर देयर स्टेज सेंस, कि वो लोग भी तो अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट उन्होंने आपको वो फील नहीं होने दिया। तो आई रियली फील कि दैट वी आर सो लकी दैट वी पार्टिसिपेटेड इन दैट। एंड वन मोर थिंग, आप जहाँ भी पार्टिसिपेट करते थे यू गेट योर प्राइज़, यू कम बैक, उसके बाद कोई सोचता भी नहीं कि वो क्या है। बट हियर आई कैन से दैट दिस इज़ लाइक अ फैमिली, कि वहाँ आपको अपना ब्रांड प्रमोशन करना है या आपको कोई भी और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है, they are always there to solve your problems. And one more thing I will suggest, that please go for their retreats. आप retreats में भी इतना कुछ you learn a lot. जैसे I went to Sri Lanka with them, I went to Thailand with them, लेकिन हर बार मैंने कुछ नया सीखा। तो इस बार भी आई रियली वांट पीपल टू पार्टिसिपेट। आपने जहाँ भी करना है आप कर लीजिए, लेकिन आई हैव अ wonderful experience at VG Miss and Mrs. India contest. Wow. So everyone should participate in हाँ, their pageants, in हाँ, their हाँ, retreats, and it will be a transformative experience for हाँ, each हाँ, and every one of you. हाँ, हाँ, This Meera ji can, like the Meera ji vouches on this, right? हाँ, हाँ, really, really. हाँ, Bilkul. So that, thank you, Neera ji, for हाँ, sharing your remarkable journey with us today. Your story, reminds us that transformation is not, defined by age, हाँ, circumstances, हाँ, हाँ, societal expectations. It begins the moment we decide, to believe in हाँ, ourselves हाँ, and take the first step of action towards our हाँ, dream. हाँ, So thank you so much for हाँ, inspiring our audience and for reminding us that when purpose, meets courage, extraordinary things happen. thank So you. to हाँ, everyone watching and listening, if this conversation inspired you, please like, share, and subscribe to Live Babi Sabi channel, so that you may not miss any episode of this channel. If you would like to share your experiences or explore a future opportunity or simply connect, feel free to book a call with me. You can find the link in the caption. And before saying goodbye, I would like to leave you with this reminder that your imperfections are not your flaws, they are your unique signature, जो कि नीरा जी हमें पूरे पॉडकास्ट में समझाती आई है, बताती है. So never underestimate yourself, never underestimate the power of your story, because your journey may be the very thing that that gives someone else courage to continue theirs. तो आज नीरा जी की स्टोरी सुन करके शायद आपके अंदर वो विश्वास जाग गया होगा दोबारा से कि हम भी पेजेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ पेजेंट में पार्टिसिपेट करना नहीं, जो भी आपकी इच्छा हो किसी स्टेज पे आप शुरू कर सकते हैं और कर सकते हैं. तो नीरा जी और कुछ आप बताना चाहेंगे? नहीं, thank you so much, Shilpi, for giving me a chance that I can also, I really feel so happy that I can also motivate so many people. Thank you for always giving me this chance. Thank you so much. Thank you so much. बहुत कुछ सीखने को मिलता है. Thank you so much, Neera ji. Thank you, And to Shilpi. everyone, until next time, take care, stay inspired, and keep shining your light. See you in the next episode. Bye bye. Thank you. Bye. Thank you. अब हो जाऊं, log हाँ on कर दूं? हाँ हाँ. Thank you, Shilpi. Thank you so much. Bye. Most welcome. फिर बात करते हैं बाद में, ठीक है? Okay. Bye.